ایران کے دل فریب دیہاتوں میں خوش آمدید، جہاں روایات اور ثقافت روزمرہ کی زندگی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کی روزمرہ کی زندگی، ثقافتی طریقوں اور کاشتکاری کی تکنیکوں سے آگاہ کریں گے جو ایرانی گاؤں کو واقعی ہی خاص بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ایران کے کچھ ایسے گاؤں کی سیر کریں گے جسے دنیا کے صاف ترین گاؤں یعنی حاجی گاؤں، گاڑوں میں بسا ہوا گاؤں جو 800 سال پہلے سے آباد ہے، اور سر آغا سعید جو ایک کے اوپر ایک بنا ہوا ہے۔ تو چلیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایران، جسے سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کہا جاتا ہے، مغربی ایشیا میں واقع ہے، جس کی سرحد شمال میں بحیرہ کیسپیئن، جنوب میں خلیج فارس اور جنوب مشرق میں خلیج عمان سے ملتی ہیں۔ یہ ملک تقریباً 16,48,195 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو اسے دنیا کا 17واں بڑا ملک بناتا ہے۔ ایک ایرانی گاؤں میں دن کا آغاز نماز فجر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ گاؤں والے مرغوں کی بانگوں کی آواز اور تازہ پکی ہوئی روٹی کی خوشبو سے جلدی جاگتے ہیں۔ ناشتے میں اکثر نان، تازہ دودھ کی مصنوعات اور مختلف قسم کے مقامی پھل اور سبزیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پر نکلتے ہیں۔ مرد کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کاشتکاری ایران میں دیہاتی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیہاتی گندم، جو اور سبزیوں سمیت کئی قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور کچھ عورتیں مویشیوں کو چڑھانے کے لیے دور دراز علاقوں میں لے جاتی ہیں، جبکہ کچھ دستکاری جیسے کہ بنائی اور مٹی کے برتن بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ایران کے 31 صوبے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے تمام صوبوں میں 65,000 سے زیادہ گاؤں ہیں۔ یہ گاؤں سائز، آبادی، اقتصادی سرگرمیوں اور ثقافتی طریقوں میں وسیع پیمانے پر مختلف ہیں۔ ہر گاؤں کی عام طور پر اپنی منفرد دلکشی، طرز زندگی اور روایات ہیں۔ کرامانشاہ کا ایک دلکش گاؤں حاجی اپنے دلکش منظر، بھرپور ثقافتی ورثے اور روایتی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ زرکوس پہاڑوں میں واقع یہ گاؤں ایران کی دیہی زندگی کی ایک انوکھی جھلک پیش کرتا ہے، جہاں قدیم روایات اور جدید اثرات ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ گاؤں ایران کی کیپٹل سٹی تہران سے 520 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حجاج کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ صدیوں کے دوران حاجی مختلف تہذیبوں سے متاثر رہا ہے، جس میں میڈیسیس، پارتھی اور ساسانی شامل ہیں۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے ساتھ حاجی نے اسلامی ثقافت اور مذہب کو قبول کیا۔ حالیہ دنوں میں حاجی گاؤں سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بن گیا ہے۔ یہ گاؤں اپنے صاف ستھرے گلیوں، بازاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حاجی گاؤں اپنے پتھر اور اڈوب گڑھ کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سخت پہاڑی آب و ہوا کو برداشت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ گاؤں فلیٹ چھتوں اور تنگ گلیوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ حاجی گاؤں اپنی دستکاری کے لیے مشہور ہے، جس میں قلین، مٹی کے برتن اور دھاتی کام شامل ہے۔ یہ روایتی دستکاری نہ صرف آمدنی کا ذریعہ ہے بلکہ ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ گاؤں کے باشندے زیادہ تر شیعہ اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ روزانہ کی نماز، مسجد میں حاضری، مذہبی تقریبات ان کی روحانی زندگی کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ حاجی میں کئی تاریخی مساجد اور مزارات ہیں جو زائرین کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ کنڈووان، ایران کے مشرقی آذربائیجان صوبے میں واقع کنڈووان دنیا کے سب سے منفرد اور دلکش گاؤں میں سے ایک ہے۔ آتش فشاں چٹانوں میں تراشے ہوئے اپنے غیر معمولی گھروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ کنڈووان ایک ایسا طرز زندگی کی ایک دلکش جھلک پیش کرتا ہے جو صدیوں سے قائم ہے۔ یہ گاؤں نہ صرف انسانی ذہانت کا ثبوت ہے بلکہ روایتی ایرانی دیہاتی زندگی کا ایک زندہ میوزیم بھی ہے۔ کنڈووان کی تاریخ 800 سال پرانی ہے۔ گاؤں کی انوکھی چٹانوں کی تشکیل آتش فشاں سرگرمیوں سے پیدا ہوئی تھیں۔ پہلے باشندوں نے حملہ آور اور سخت موسمی حالات سے خود کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو ان چٹانوں میں تراشا۔ کنڈوون ایک فارسی نام ہے جس کا مطلب ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا۔
जो इसकी चट्टानों के मकानात के शहद के छत्ते जैसे ज़ाहरी शक्ल को ज़ाहिर करता है। सदियों से यह घर अपनी असल तामीरात को बरकरार रखे हुए हैं। कंडोवन अपनी दस्तकारी के लिए मशहूर है, जैसे कलीन की बुनाई, कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन। ज़राअत कंडोवन की मुआशरत में अहम किरदार अदा करती है। गांव के आसपास की ज़रख़ेज़ ज़मीन गंदम, जौ और मुख्तलिफ फलों जैसी फसलों की काश्त में मुआवजा। गाँव वाले अपने घरों के इर्द गिर्द छोटे बागात में सब्जियां और जड़ी बूटियां भी उगाते हैं। कंडोवन में इज्तिमाई ज़िंदगी मजबूत समाजी बंधनों और बहमी ताउन के असास से नुमाया है। गाँव वाले अक्सर ज़रूरी सरगर्मियों में मिलकर काम करते हैं, त्योहारों को इज्तिमाई तौर पर मनाते हैं और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं। हालिया बरसों में कंडोवन अपने मुनफरिद फन तमीर और शानदार कुदरती मनाजर की वजह से एक मकबूल सियाहती मुकाम बन गया है। सियाहत ने गांव को मुआशी फ़ायदा पहुंचाया है, रिहायशियों के लिए नए मौके फराहम किए हैं। ज़ाहरीन अक्सर गांव की चट्टानों के मकानात और इसके बाशिंदों के रवायती तर्ज़ ज़िंदगी से मुतवज्जो होते हैं। सर आगा सईद एक कुदरती और सकाफती लिहाज से अमीर गांव है जो ईरान के सूबे चहार महल और बख्तियारी में वाक़या है। अपने शानदार कुदरती खूबसूरती, बख्तियारी सकाफत और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। ये गांव बख्तियारी लोगों की दही तर्ज़ ज़िंदगी की एक अनोखी झलक पेश करता है। ये गांव तेहरान से 670 किलोमीटर की दूरी पर है। सर आगा सईद का गांव कई सदियों पुराना माना जाता है, जो कम से कम 400 से 500 साल पुराना है। इसका क़याम इस खित्ते में आबाद होने वाले बख्तियारी खाना बदोश कबाइल से गहरा ताल्लुक़ रखता है। सर आगा सईद का बुनियादी पेशा ज़राअत है। गांव के लोग गंदम, जौ और सब्जियां समेत मुख्तलिफ फसलें काश्त करते हैं और इसके अलावा सेब, नाशपाती और अखरोट जैसे फल भी उगाते हैं। बख्तियारी लोग भेड़ बकरियां पालने के लिए मशहूर हैं, जो गोश्त, दूध और ऊन मुहैया करते हैं, जो रिज़्क़ और तजारत दोनों के लिए ज़रूरी हैं। सर आगा सईद में तलीम की कदर है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जो बुनियादी तलीम फराहम करता है। आला तलीम के लिए तलबा अक्सर करीबी कस्बों और शहरों का सफ़र करते हैं। नाम सर आगा सईद ईसा के मुक़द्दस मज़ार से है। सईद ईसा शिया मुस्लिम के 7वें इमाम की औलाद थे। ख्याल किया जाता है कि वो इस गांव के नीचे दफन हैं। सर आगा सईद गांव पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है। आप ऊपर आई बटन पर या वीडियो की एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। गांव वाले साल भर मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, जैसे नौरोज़, जहां वो अपने विरसे का एहतराम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हालांकि नौरोज़ त्यौहार का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। नौरोज़ जिसका मतलब है नया दिन, जो 20 या 21 मार्च को मनाया जाता है। ये मौसम बहार का पहला दिन है और इसे फ़ारसी सकाफ़त से मुतासिर मुख्तलिफ खित्तों में 3000 साल से ज़्यादा अरसे से मनाया जा रहा है। नौरोज़ की इब्तिदा ज़रतश्त मज़हब से हुई और ज़रतश्त मज़हब की इब्तिदा ख़ास तौर पर साइर आज़म के दौर में, जिसने ज़रतश्त मज़हब को कबूल किया और फिर इसे फ़रोग़ भी दिया। इस मज़हब को मनाने वाले आग की इबादत करते हैं और इनके मंदिरों में अक्सर एक मुक़द्दस आग होती है जो मुसलसल जलती रहती है। 7वीं सदी की इस्लामी फ़तह के बाद से आज तक नौरोज़ को मनाया जाता रहा है, जो अपनी बुनियादी रवायात और इस्लामी रस्म व रवाज को यकजा करके। ईरान अपने भरपूर कुदरती वसाइल जैसे तेल, कुदरती गैस, कोयला और मदनियात जैसे तांबा, लोहा और जिंक के लिए भी जाना जाता है। ईरान में ईद उल अज़हा और ईद उल फितर ये दोनों सबसे बड़े त्यौहार हैं, क्योंकि ईरान में इस्लाम मज़हब गालिब है, जिसकी आबादी की अक्सरियत शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ईरानी देहातों में अक्सर मसाजिद, मज़ारात और मजहबी स्कूल होते हैं, जो इबादत के मराकज़ और इज्तिमाई इज्तिमात के तौर पर काम करते हैं। ईरान अपने फलों की पैदावार के लिए मशहूर है, जैसे कि अनार, संतरे, लीमू, खजूर और मुख्तलिफ़ किस्म के खरबूजे, और सब्जियों में टमाटर, खीरे, बैंगन और आलू शामिल हैं। ईरान दुनिया में पिस्ता पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक है, ख़ास तौर पर सूबा करमान में। इसके अलावा बादाम, अखरोट, अंजीर जैसे खुश्क मेवाजात ये ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी काश्त किए जाते हैं।
ईरान के कुछ हिस्सों में आबपाशी के लिए आज भी सदियों पुराना तरीका इस्तेमाल होता है जिसे कनात कहा जाता है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़राए को इस्तेमाल करते हैं और सदियों से खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में फसलों को सराब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान के गाँव में शादियों की तकरीबात भी देखने के काबिल होती हैं, जो 4 से 5 दिनों तक चलती हैं, जिसमें मौसीकी और रक्स के साथ आने वाले मेहमानों के लिए खाने की मुख्तलिफ डिशों का एहतमाम भी किया जाता है। ईरान के देहात इस तर्ज़ ज़िंदगी की एक झलक पेश करते हैं जो फितरत, सकाफत और बरादरी से गहरा जुड़ा हुआ है। जदीदियत के चैलेंजों के बावजूद ये गांव आने वाली नस्लों के लिए अपने शानदार विरसे को महफूज रखते हैं, जो हज़ारों सालों से कायमो दाइम है। तो ये तो थी ईरान के गांव की ज़िंदगी। ईरान की गाड़ों में बसा हुआ सर आगा सईद गांव, उसे देखने के लिए इसे क्लिक करें। इसके अलावा एक ऐसा मुल्क जहां सब कुछ फ्री है, उसे देखने के लिए इसे क्लिक करें।